starting up from 6th of April, in which we are offering first 10 seats absolutely free. We have no admission charges for the limited seats so that we can, give one concentration on one and one child. देश में माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में एक नारा दिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कुछ ऐसे ही जज्बातों के साथ आज एमए इंडिया पहुंचा है सिल्वर टुलिप स्कूल कविनगर गाजियाबाद में, जिसका आने वाली 6 अप्रैल को इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सिल्वर टुलिप की डायरेक्टर रूपिका बहल जी। आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि सिल्वर टुलिप स्कूल की इनॉग्रेशन के बारे में और क्या इसका इतिहास है। आइए उनसे बात करते हैं। रूपिका जी, आपका एमए इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जो मेरे दर्शक जो एमए इंडिया के आपको देख रहे होंगे, ये जानना चाहेंगे कि सिल्वर टुलिप स्कूल, पहले तो आपको मैं उसके इनॉग्रेशन की बधाई देता हूँ एमए इंडिया परिवार की तरफ से। और सबसे पहले हमें सिल्वर टुलिप स्कूल के बारे में बताइए। So, good evening, everyone. And Silver Tulips Nursery was started back holding an experience of more than 10 years into early childhood care education, and I specialize only into early childhood care. And we were running a good school here in India, back in India, and one nursery for your kids. And I assure you that we give you more and more cultural values. And yes, definitely the issue these days is more of the screen time. These days, kids are using phones, tablets, and televisions at home. So we don't focus on screen time, and we want to inculcate those values and practical based learning without screen time. And apart from that, it will be complete EYFS curriculum, which will be Montessori, and all English well trained teachers will be there. So that's all about our school, and we hope to look forward with more and more kids and admissions from your support. जैसे कि आपने मुझे बताया कि 2010 में आपने इसकी शुरू की और आप अगेन इसे रीस्टार्ट करने जा रही हैं, तो अभी तक एक लंबा अंतराल था 2010 के बाद, आज 2026 चल रहा है। तो अब जो आप शुरुआत करने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि क्या स्कोप है और क्या स्पेशलिटी होगी आपके सिल्वर टुलिप स्कूल में के पेरेंट्स आपके पास आए और अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराएं? पहली बात तो हमने ये 2010 के बाद स्कूल बंद नहीं किया था, स्कूल हमारा ऑनगोइंग था, बट हम Okay, I want to know that lot of people are seeing you on MA India News. So, how is the best facility in your school you are providing to us? Yes. So we will be giving you the ratio of teachers, like 22 to teachers ratio will be there. You will be assisted with one assistant teacher and one main teacher. We will not be having more seats. We are having, so that will be the main criteria what we will be following. And classes would be all air conditioned classes, and transportation will be available by us. And yes, even the fee structure what we are keeping is eco-friendly, where every person can afford, because these days schools are becoming really commercial, and instead of becoming commercial, we are just focusing on education. So at last, I would like to say that learning gives wings to fly, and that is what my message is to all, that you must educate your child. You should not make your kids sit at home, and you should inculcate those values which are required in today's challenging world. Rupika ji, I want to also know that you are going to organize Silver Tulip School on 6 April. So you have to contact some parents also. So what is the response of the parents about? How is the response the parents those are interested to taken that decision in your school? So what is your opinion? So I don't have to much, go and advertise my school. As I told you that we had got a good name in this industry, as I have been holding more than 10 years of experience into same field. So I have already booked 20 seats, which are already there, and already confirmed admissions for our pre-nursery batch for 2026 year. And apart from that, yes, there will be more admissions coming up, but not now, but after summer vacations, we'll be taking up. So how many teachers are going to working in this school? Every class would be having 2 teachers, and as I told you, it's a pre-primary kindergarten, pre-nursery, nursery, KG till kindergarten. We are taking the admissions. So our area, main core area, is early childhood year only.
and one teacher will be assisting one teacher, so almost 8 teachers would be assisting 4 classes. So, which type of activities in your school in Silver Tulips? So, could you please tell me to the audience? It will be completely Montessori based, which is EYFS, and you must be knowing about EYFS. Maybe you know many parents. In Montessori, we basically focus on practical based learning. हम बच्चों को थ्योरी कम कराते हैं उसमें. वी फोकस ऑन देयर प्रैक्टिकल स्किल्स एंड देयर ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल्स, जहाँ पे बच्चे की ब्रेन ग्रूमिंग, कंसंट्रेशन लेवल, उनका टाइम मैनेजमेंट, एंड द किड्स बिकम डिसिप्लिन्ड. सो वी फोकस ऑन दोज एरियाज. रुपिका जी, जैसे कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, जैसे कि आपने देखा हुआ है कोरोना काल आया जब 20 में, तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी. तो टेक्नोलॉजी का बहुत, अब एआई भी आ गया है, चैट जीपीटी भी आ गया है. तो क्या आप लोग स्टडी में आने वाले दिनों में अपने सिल्वर यूथ में क्या आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी स्टडी को यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? जी, हम लोग करिकुलम प्लान बनाएंगे बच्चों का, जो कि हमारा ऑलरेडी बन भी चुका है. बट बेसिकली मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया दैट वी आर नॉट गिविंग स्क्रीन टाइम टू चिल्ड्रन. अभी कोरोना काल में यही हुआ कि बच्चों ने स्क्रीन टाइम ज़्यादा देके उनका जो है बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल पे बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बच्चों के स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं. सो वी विल रिड्यूस दैट स्क्रीन टाइम एंड वी विल ब्रिंग किड्स इनटू द प्रैक्टिकल लर्निंग, जहाँ पे वो बच्चा प्रैक्टिकली उस चीज़ को सीखेगा, थियोरेटिकली सीखेगा इंस्टेड ऑफ स्क्रीन टाइम. तो मेरे स्कूल में एक खासियत जो आप देखेंगे, प्रोजेक्टर पर जो भी हम लोग वीडियोज़ या कुछ भी शो करेंगे दैट विल बी जस्ट वंस अ वीक. बाकी सब हम बच्चों को स्पोकन इंग्लिश एंड स्पोकन लैंग्वेज पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे. तो स्क्रीन टाइम को हमें रिड्यूस करना है क्योंकि वो बच्चों के ब्रेन को बहुत आजकल हार्म कर रहा है. बहुत सारे स्कूल में हम देखते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स की हो गई, ड्रामा हो गया, इसके अलावा ड्राइंग है, आर्ट है, और बहुत सारी एक्टिविटीज. तो आपके यहाँ भी कोई खास एक्टिविटीज़ इस तरह की आप लोगों ने प्लान किया है? जी, हमारे यहाँ पे डांस क्लासेस जल्दी शुरू होने जा रही हैं इवनिंग में, एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद आर्ट एंड क्राफ्ट. एंड हमारे काफ़ी पुराने कोरियोग्राफर रहे हैं मिस्टर संजय राणा. ही विल बी कंडक्टिंग द डांस क्लासेस एट आवर स्टूडियो. एंड पहले भी सर ने ही डांस क्लासेस यहाँ कंडक्ट करी हैं और बहुत ही बच्चे अच्छे से उनको फेमिलियर हैं. और उसके साथ साथ हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल बी गिटार, कीबोर्ड, all these classes will be. And even we have introduced French and German language classes that will be 2 days a week. रुपिका जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मोबाइल आजकल बच्चों के लिए बड़ी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चे जो है मोबाइल पे बिता रहे हैं. तो इन चीज़ों से दूर करने के लिए, बच्चों को एक्टिविटीज़ में शामिल करने के लिए, क्या आप लोग अपने स्कूल में ऐसा कुछ और भी इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे बच्चे मोबाइल से दूर हों और एक्टिविटीज़ की ओर ज़्यादा अग्रसर हों? Yes, that's what I told you, that we will be reducing the screen time for the kids, and yes, they will be introduced to new activities like martial arts. And every year while I keep on doing events for the kids like fancy dress, वो उनके बच्चों की पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, प्लस बच्चों की स्पोकन स्किल्स को बढ़ाता है जब बच्चे स्टेज पर जाते हैं. एंड दैट विल बी द मोर कोर एरिया जो हम लोग फोकस करेंगे स्पोकन इंग्लिश पर, और बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस स्किल्स एंड डिसिप्लिन. रुपिका जी, एक बहुत ही अहम मुद्दा है. अप्रैल का महीना आता है, बहुत सारे स्कूल में हम देखते हैं पेरेंट्स भी परेशान होते हैं. एक मुद्दा है फीस का और दूसरा है किताबों का. तो क्या आपके यहाँ वो बच्चे भी आ सकते हैं जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत हाई फीस नहीं दे सकते? तो क्या आपके इस सिल्वर टिल्स स्कूल में कुछ ऐसा भी प्रावधान है कि वो बच्चे, उन बच्चों को भी दाखिला मिल सके जो अफोर्डेबल नहीं है? जी बिल्कुल, एज मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे फर्स्ट एडमिशन बिल्कुल फ्री हैं. और यस, अगर पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी, बट मैं ये चाहूँगी कि हर पेरेंट को ये चाहिए दैट शुड एजुकेट देयर चाइल्ड. और ये बेसिक एजुकेशन है जो कि बच्चों को बिल्कुल बिगनिंग में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती है. तो मैं बिल्कुल एज अ सोशल वर्कर भी, मैं जितने बच्चों को अपनी साइड से पढ़ा सकूँगी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को करूँगी. और यस, हमारा फीस बहुत इकोनॉमिकल, बजट फ्रेंडली रहेगा. लाइक ऑल अदर स्कूल्स, हमारा उतना फीसेस हमने नहीं रखा है. इवन स्टेशनरी जो भी बच्चे लेंगे वो भी दैट इज़ ऑल्सो वेरी इको फ्रेंडली. और हमारे यहाँ एडमिशन चार्जेस नहीं है कुछ भी. और इसके अलावा कोई स्पेशल डिस्काउंट पेरेंट्स को या बच्चों को आपकी तरफ से, ऐसा भी कुछ है? जो स्पेशल नीड्स बच्चे होंगे उनके लिए भी हम एक
कुछ अभी अरेंज कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है वो। उनके लिए हम 10 to 20% मंथली फीस पर भी डिस्काउंट देंगे, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को भी हम लोग डिस्काउंट के लिए कंसीडर करेंगे। क्या आप ऐसा भी कोई प्रावधान ला रहे हैं जो स्पेशल कैटेगरी के चाइल्ड हैं? जी। तो जैसे कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का आजकल बहुत ही महत्व है, तो क्या आप टेक्नोलॉजी से कुछ बच्चों को जोड़ेंगे, या क्लासेस ऐसे हैं जैसे कि कंप्यूटर पे आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, वो उसमें एआई भी आ गया है, तो इस तरह की भी कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपके यहाँ होने वाली हैं? See, to be very frank, I will not be making a child very techno friendly. Yes, बच्चे ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनका एक फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें बच्चों को रोज प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकली बच्चे क्या करना चाहते हैं, आजकल चैलेंजिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हम उसके लिए बच्चों को ट्रेन करेंगे। बट हाँ, हम पूरा कंप्लीट कंप्यूटर नॉलेज ये सब अभी हम स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बच्चे का फाउंडेशन और जो उनके ब्रेन स्किल्स हैं वो वीक होते हैं। एक बच्चों को बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, वो है पिकनिक ट्रिप। तो क्या सिल्वर टुलिप्स बीइंग अ डायरेक्टर, आप अपने आने वाले समय में यहाँ जब बच्चे आएंगे तो क्या आप उन बच्चों को कहीं ऐसी जो है विजिटिंग प्लेसेस जो हैं इंडिया के पिकनिक के तौर पे, वो सब का भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट बच्चों के लिए है? यस, बिल्कुल। हम लोग साल में 2 बारी बच्चों को पिकनिक पे लेके जाते हैं। पहले भी हमारे टेम्पल टूर्स होते थे, इस्कॉन में मंदिर भी हम लेके गए, बच्चों को लोटस टेम्पल भी लेके गए दिल्ली, और आगे आने वाले टाइम में भी वी विल बी कीप ऑन टेकिंग द किड्स टू डिफरेंट कल्चरल म्यूजियम्स एंड फन पिकनिक्स, एवरीथिंग विल बी डन हियर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा रूपिका जी, कि आज हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, प्ले स्कूल जगह जगह खुल गए, गाज़ियाबाद में, दिल्ली, एवरीवेयर। तो आपके स्कूल में और स्कूल्स में क्या खास डिफरेंस है? फर्स्ट तो मैंने बताया कि अभी आप किसी भी प्ले वे स्कूल में जाएंगे, वो लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम हम लोग ज़्यादा दें, और मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी किसी स्कूल को, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी मेहनत करता है बच्चों के साथ, एंड इवन एज अ स्कूल प्रोफेशन में वो यही ट्राई करते हैं कि बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दें। बट सिल्वर ट्यूलिप इज़ डिफरेंट बिकॉज वी विल बी इनकलकेटिंग ऑल द कल्चरल वैल्यूज़ and all the values which are required for today's challenging world. And we have a motto of our school which is learning gives wings to fly. So every child should be educated and every child will be learning practically and all the theme based learning will be done. बाद अब यहाँ रन करने जा रही है, क्या आने वाले दिनों में सिल्वर टूलिप्स की ब्रांचेस हम ऑल ओवर इंडिया या अन्य शहरों में भी देखेंगे? जी बिल्कुल, आप देखेंगे, और अभी हम इसको फ्रेंचाइज के रूप में भी हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आने वाले दिनों में इसकी फ्रेंचाइजी भी हम देख सकते हैं? अच्छा, अगर कोई फ्रेंचाइजी आपके स्कूल की लेना चाहे तो उसके लिए क्या मतलब प्रोसीजर क्या हो? ये शायद अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू टेल यू अबाउट दैट वी विल बी डिसाइडिंग। बट अभी फिलहाल अभी हमारी जो पेरेंट ब्रांच है वो हम कविनगर में ही गाजियाबाद में रन करेंगे, एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली वी विल go for franchise as well. In one sentence, what do you say about the Silver Tulips? Silver Tulips is the best place where you can send your children to nurture and growth and make your kids according to today's challenging world. I think dreams come true. Huh? I think dreams come true. Yes, sure, very much true. It will come true. Okay, Rupika ma'am, it's time to closing to wind up this show. So I want to tell you, do you want to give any message? Because tomorrow we will be celebrate the Hanuman Janmotsav and all over India. So did you want to say any message for the MA India audience viewers and any message for Hanuman Janmotsav? मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारे साथ रूपिका बहल जी, जो आने वाले दिनों में सिल्वर टुलिप्स की के इनॉग्रेशन जो कि 6 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है। रूपिका मैम, आपने एम इंडिया न्यूज़ से बात की। कैमरामैन आशद सैफी के साथ मैं राम, एम इंडिया न्यूज़।